Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, hope all of you are fine at your home and enjoying good health. This is our chemistry lecture and we are talking about matter, and we classified matter in our previous lectures. Now we are moving ahead and talking about further regarding matter. Matter, the basic component of the matter is element, which consists of atoms. An atom consists of two parts, the central part that is called nucleus and the outside part. Central part contains the two basic components, number one proton, number two neutron, and the outside this nucleus there is one fundamental particle that is called electron. Now we will further discuss in this lecture regarding atomic number and mass number. We try to understand these two concepts in our lecture. Number one, atomic number. Atomic number is defined by the protons that are found inside the nucleus. The number of protons found inside the nucleus is called atomic number. This atomic number is presented by Z. The atoms of the element, they have same number of proton of one element. Each element has same number of proton inside the nucleus, and that is why it is called identification number of the atom. If we want to identify an atom, we will look at its number of protons, and it is called atomic number presented by Z. अगर हम इसकी कोई एग्जांपल देखें, हम देखते हैं हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम का जो न्यूक्लियस है उसके अंदर प्रोटॉन 1 और न्यूट्रॉन 0, और इसके आउटसाइड जो इलेक्ट्रॉन है वो 1 है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो प्रोटॉन चूंकि 1 है तो इसका एटॉमिक नंबर कितना हुआ 1। और इसी तरह अगर हम कार्बन को देखते हैं तो कार्बन के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन 6 है, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा 6। और इसी तरह अगर हम ऑक्सीजन को देखते हैं तो इसके प्रोटॉन 8 हैं, तो इसका एटॉमिक नंबर भी 8 कंसीडर होगा। नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है दैट इज मैस नंबर। मैस नंबर को भी हम न्यूक्लियस से ही फाइंड करेंगे। हम न्यूक्लियस को बगौर देखेंगे, हमें न्यूक्लियस के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन मिलेंगे और जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिलेंगे, इन दोनों को हम सम कर देंगे और उससे हमें मास नंबर मिलेगा। मींस कि सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड मास नंबर, एंड इट इज आल्सो कॉल्ड एज एटॉमिक मास। और एटॉमिक मास को हम प्रेजेंट करेंगे ए से, कैपिटल ए यूज करेंगे इसके लिए। और ए, इसका अगर हम रिलेशनशिप देखें विद द एटॉमिक नंबर तो हम देखेंगे कि ए इज इक्वल टू जी प्लस एन। रिमेंबर जी इज इक्वल टू पी, पी मीन नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगर हम किसी भी एटम के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सम करें तो हमें एटॉमिक मास मिल जाएगा। इसको हम देखते हैं, हाइड्रोजन की हमने एग्जांपल ली थी। हाइड्रोजन के अंदर प्रोटॉन कितने थे 1 और न्यूट्रॉन 0। अगर हम फॉर्मूला यूज करते हैं A इज इक्वल टू जी प्लस एन और Z इज इक्वल टू 1 बिकॉज द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 1 and we add the number of neutron. How many neutrons? N is equal to 0. So we add them up and we get A is equal to 1. So the mass number of hydrogen is 1. Similarly, we take the example of carbon. In carbon, the number of proton 6 and number of neutron 6. If we add the number of proton 6 and number of neutron 6, we get 12. So the mass number of carbon is 12. Similarly, we take the example of oxygen. In oxygen, the number of protons are 8
number of neutrons that are 8, and we add them 8 plus 8 and we get the atomic mass 16. So we conclude that the atomic mass, we can easily get atomic mass from atomic number and the number of neutron. Then when we add them up, we get atomic mass. Now we take the further example from the table mentioned below, in which the atomic number and mass number of different elements are mentioned. We have already discussed hydrogen, carbon and oxygen. And we take the other examples. अगर हम देखते हैं नाइट्रोजन को, तो नाइट्रोजन के जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो 7 है, और इसके अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन 7 है तो एटॉमिक नंबर जो है वो इसका 7 कंसिडर होगा। और अगर हम इसको न्यूट्रॉन को कंसिडर करते हैं तो न्यूट्रॉन इसके 7 है, तो इसका एटॉमिक मास कितना होगा? यस, हम इन दोनों को ऐड करेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को, 7 + 7 एंड वी गेट 14। तो इसका एटॉमिक नंबर जो है नाइट्रोजन का वो 14 होगा। इसी तरह फ्लोरीन को देखें तो फ्लोरीन के नंबर ऑफ प्रोटॉन 9 है, तो ये हमें इसका क्या बताएगा? एटॉमिक नंबर। और इसका एटॉमिक नंबर कितना हुआ? 9। और अगर इसके न्यूट्रॉन देखें तो वो 10 है। तो न्यूट्रॉन हमने क्यों देखे? क्योंकि हम एटॉमिक मास को या मास नंबर को फाइंड करना चाहते हैं, तो हम इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड कर देंगे, 9 + 10 एंड वी गेट 19. So mass number of fluorine is 19. इसी तरह सोडियम को अगर हम देखते हैं तो सोडियम के प्रोटॉन 11 है, तो इसका एटॉमिक नंबर भी 11 होगा। और अगर इसका मास नंबर हम फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें वन मोर इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। वो क्या होगी? यस, वो होगी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ओके, we add the number of proton and neutron. Number of neutron, how many neutrons are in sodium? 12. And if we add this 11 and 12, we get 23. So the mass number of sodium is 23. Okay. Oh, we take one example more, that is magnesium. Magnesium के number of proton कितने हैं? 12. Okay. तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? 12। ओ बाय द वे, अगर हम यहाँ पर एक और चीज देखें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 12 है, तो इसका आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या होगा? ओ दैट विल आल्सो बी ए 12, बिकॉज आइडेंटिफिकेशन नंबर और प्रोटॉन नंबर दोनों सेम होते हैं। और प्रोटॉन नंबर, एटॉमिक नंबर या आइडेंटिफिकेशन नंबर सेम चीज है। अब हम इसका मास नंबर देखते हैं मैग्नीशियम का। अगर हम नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को ऐड करें तो 12 + 12 वी गेट 24। तो मास नंबर ऑफ मैग्नीशियम इज 24। सिमिलरली पोटेशियम एंड कैल्शियम आर मेंशन्ड बिलो। यू कैन इजीली ascertain their number of proton that are 19 and 20 respectively, and their atomic number is 19 and 20 respectively. Similarly, their mass number, by adding their proton and neutron, we get 39 and 40 respectively. Okay students, now we take an example mentioned below, example number 1.1, in which we are asked how many number of proton and neutron are there in atom having A is equal to 238 and Z is equal to 92. एक्चुअली वो हमसे क्या चाहता है कि हम उसे नंबर ऑफ प्रोटॉन बताएं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताएं, जबकि उसने हमें कुछ इंफॉर्मेशन दी है। वो क्या है? अगर हम डाटा को देखें तो A is equal to 238 और Z is equal to 92, और रिक्वायर्ड क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अभी हमने डिस्कस किया नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल होते हैं? यस, Z। तो Z हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन बताता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो उसने हमें खुद बता दिए। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू Z इज इक्वल टू 92। ओके, और हमारा सेकंड रिक्वायरमेंट हमारी क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन।
तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है A इज इक्वल टू जी प्लस एन, और एन यहाँ पर क्या है, न्यूट्रॉन, और अगर हम न्यूट्रॉन को एक साइड पे रखते हैं तो ये बन जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू ए माइनस जी, और a माइनस जी का मतलब क्या हुआ, हमारे पास a कितना है 238, और इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे z को, दैट इज 92. व्हाट विल बी आवर आंसर, 146. यस, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन in this case will be 146.